decoder and multiplexer, can they help us implementing a function? Uh, so definitely they can, because decoder has already all the minterms decoded. And if you remember the decoder, for example, let's talk about a 4 to 16 decoder. If 154 है ये वाला 4 to 16. So it has 4 inputs. 4 to 16 decoder is एक रॉ बीच में खाली छोड़े यार एसओपी की वजह से. चलो ठीक है, रहने नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है. मैं वैसे कह रहा हूँ इतनी पीछे पीछे ना बैठे, आगे बैठे ना अजीब सा लगता है. पता नहीं क्या, क्यों आप लोगों को बहुत पीछे पीछे जाने की. यह जगह खाली है, यहाँ भी एसओपी उतने ही होंगे, उस बजाय से कि आप उनके साथ जाके बैठ जाए, जरा खुले और भी बैठ सकते हैं. So 4 to 16 decoder will have 16 outputs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, खत्म हो गया? All right. 13, 14, 15, 16. 4 to 16. Oh. So it will have 4 inputs. Now this will be mentioned sometime here. So this giving an input, if you want to give this input, or if I want to give this input, 4 input decoder, what is the difference between this, giving this input and this input? Giving this input, if I give this input, this will be 1, 2, 4, 8. So this will be 1. And if I give this input, this will be 1, 2, 4, 8. This will be 8. So see the difference. That's why this is 2 raised power 3, 8. So in this configuration, if I want to give 1, I will have to give 0, 0, 0, 1. Not 1, 0, 0, 0. When I have written this, they correspond to this over here. So they are not meaningless. They are not equivalent. All inputs are not equivalent here, not in the decoder. So we have enable. So we'll make this equal to 1. Just forget this. So since we are only implementing a function, so how do we implement a function? Let's see, we have a function here of 4 variables, K, L, M, N, so first I write the 16 variable to table. The first thing to do is अब रिपीट कर लूं ये वाला ही 1 के साथ. आपको जो है ना ज्यादा 4 वेरिएबल का, चूंकि हमने पढ़ना वेरिएबल, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो जाती है. 8 का अगर आ जाए तो 16 का 1 के साथ रिपीट हो जाता है.
So this is a 0. Remember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So a function can, these are all the minterms. So this minterm is, what is this minterm equal to? This is k complement, L complement, M complement, N complement. यही है ना ये वाली पहली minterm. So this is, इसको हम कहते हैं M0. अब हमने एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर. मैंने ऊपर टॉपिक भी लिख देता हूँ. लोग कहते हैं टॉपिक का पता नहीं लगता क्या टॉपिक है. ये टॉपिक वगैरह मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता लिखना. तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके इसका पूरा ताना बहा आज मैं लिख देता हूँ. फंक्शन implementation using decoder. Let's see, we have a function here now. जाहिर है कि ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसमें फंक्शन f will be वेरिएबल k l m n इक्वल टू सिग्मा m. किन वैल्यूज के लिए 1 है बताएं. 0 से 15 तक जा सकते हैं हम. कौन कौन सी वैल्यू के लिए 1 है? 1, 3, 5, 7. ये सारी इवन बताती जा, ऑड बताती जा रही हैं आप. चलें कोई नहीं, मुझे नहीं इतराज, लेकिन कोई बात नहीं. 9, 13, 14, 15. All right. And let's add some don't care conditions also. Plus don't care condition. Sigma d is shown to be for which function we don't care what is the output. For those minterms, we don't care what is the output. So वो क्या डालें? वो इनमें से नहीं होनी चाहिए. वो वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आप चाहते हैं कि फंक्शन की आउटपुट 0 हो, पक्की 0 हो. ये तीसरा चॉइस है जिसके लिए आपको परवाह नहीं है कि 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. तो कोई वैल्यूज बताएं. 2, 4, 12. वेरी गुड. इसको जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये बन जाएगा 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. टू और 4 पे डोंट केयर है. शुक्र है, चलो कुछ तो है ना इधर. 4 पे डोंट केयर. और 8 पे 0, 9 पे 1, 10 पे 0, 11 पे 0, 12 पे 0, 13 पे 1, 14 पे 1, 12 पे डोंट केयर है, 14 पे 1. ये फंक्शन है. अब आप देखें कि ये इस डिकोडर से इट्स सो इजी पीजी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज व्हेन द इनपुट इज 0, 0, 0, 0, आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0. So I just take all those outputs for which this is 1. So this is M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. For all the inputs for which this output is 1, this is one of those. 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15.
अब इनके आउटपुट पे क्या लगाऊं? देखें फंक्शन हम लिखते हैं, जब ये वाला फंक्शन हम लिखेंगे तो ये फंक्शन किसके बराबर होगा? ये वाला फंक्शन f इज इक्वल टू, ये वाली मिन टर्म किसके बराबर है? जिसके लिए ये 1 है, k कॉम्प्लीमेंट l कॉम्प्लीमेंट m कॉम्प्लीमेंट n प्लस ये वाली k कॉम्प्लीमेंट l कॉम्प्लीमेंट m n प्लस कैरी ऑन लाइक दैट, है ना? यही होता है ना फंक्शन मिन टर्म फॉर्म में। दिस इज m1 0 0 0 1, दिस इज m3 0 0 1 1। तो इस तरह से अपने यू कैरी ऑन लाइक दैट मिन टर्म्स। सो दिस फंक्शन ही मिन टर्म, ये वाली मिन टर्म है। फॉर ऑल दिस वैल्यू मिन टर्म, इनके बीच में, मिन टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है? और गेट। ये देखे ना यहाँ पे डायरेक्ट और गेट आपको नजर आ रहा है, तो एक बड़ा आर गेट लगाना पड़ेगा। बड़ा आर गेट, बड़े बड़े आर गेट भी होते हैं, ये रिमेम्बर, बहुत बड़े। मुझे याद है कि वो मेरा हमजा जब छोटा होता था ना, बच्चों का ये काम होता है, छोटे जब बच्चे होते हैं उसने मुझे कहना, वो फैन चल रहा होता था, एग्जॉस्ट फैन, तो सूरज उसकी लाइट में ना, सनलाइट में उसका वो बड़ा अच्छा लगता है, पीछे कभी सूरज नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता अगर हवा से चल रहा हो, उससे बड़ा अट्रैक्ट करता था वो। तो उसने उसका नाम रखा हुआ था एग्जॉस्ट फैन को, वो कहता था एग्जॉस्ट फैन को, अपन देसी लोग तो मेरा हाल इजाज फैन कहते हैं ना, लेकिन वो उसको जाओ फैन कहता था। तो ऐसे में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बता रहा था कि उसने फिर मुझे कहना पापा जाओ फैन बनाए, पेपर पे ला के देना, पेन भी ला के देना, तो मैंने एक जाओ फैन बना देना। अब उसने कहना इसकी मामा भी बनाए। फिर मैंने इसको बड़ी सी मामा भी बना देनी। फिर उसने कहना अब इसका पापा भी बनाए। तो काफी रिश्तेदार बन जाते थे ना सारे। तो ये समझ लें कि ये एक तरह से ये इनका पापा और गेट है ये वाला, बड़ा सा और गेट, पापा और गेट। राइट, राइट। तो this is simple as whenever these inputs are one, any of these is one, only then the output will be one. You don't have to include this don't care conditions. Why? Because you will only increase the size of OR gate, and for those the output will be one. But you don't. Why you want to do that? Leave the output zero. Assume don't care to be zero. That will help this reduce the size of the OR gate. उसके लिए आउटपुट जीरो आएगी डोंट केयर के लिए। कौन सा? सॉरी, ये डोंट केयर ना डालें बीच में, डोंट केयर की जरूरत नहीं है इसकी। 4 12 इनको डालने से और गेट ही बड़ा करेंगे, अननेसेसरीली आउटपुट 1 हो जाएगी इन मिन टर्म्स के लिए। और चूंकि इनपुट तो आ ही नहीं सकती, ये वाली मिन टर्म्स इनपुट पे अपीयर नहीं हो सकती फॉर सम रीजन। सो रिड्यूस योर हार्डवेयर। ये पापा आर्ट गेट, अगर इनको भी 1 करेंगे तो ये पापा आर्ट गेट से भी बड़ा ग्रैंड पापा आर्ट गेट आपको बनाना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रैंड पा आर्ट गेट। सो डोंट नीड दैट। एक किसी ने कह सकते हैं कि व्हाट इफ वी ओनली हैव मल्टीप्लेक्सर इन द लैब, कैन मल्टीप्लेक्सर हेल्प implement a function? And the same function we want to implement using a multiplexer, can it help? Remember multiplexer के अंदर ही OR gate लगा होता है। If you remember, multiplexer already has an OR gate at the final output of all the inputs. So 4
16 input multiplexer we can use to implement this function. If that is there in already in the lab somewhere lying around in the lab, तो आप इतना फंक्शन बनाने के लिए और गेट्स वगैरह लगाएंगे, के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे, none of that is needed. If you have decoder, you can make it like this. SAMFO 154 is a 4 to 16 decoder. It's a big IC. Why? Because 4 inputs, 16 outputs. कितनी होगी total? 20 plus enable, 21 plus VCC plus ground, and so on. So it's a big IC. It's not a small IC. It needs, so maximum IC you will find in, this pitch that you are using. Maximum number is, I think, 16 or maybe 20. But higher than 20, the size between the pin legs of the pin increases, becomes double. I don't know why, was the reason, mechanical reason. So the IC is maximum, I think, is 44. I have seen in this package, type package, जिसके दोनों साइडों पे पिनें लगी होती हैं और वो PCB में लग सकते हैं ब्रेड बोर्ड में. The maximum IC size is 44 pins. After that, you go on to a microprocessor type IC, जिनके नीचे पिनें होती हैं, and that's some other type. So anyway, so if I have this in my lab, I can easily make this by using OR gate. बड़ा OR gate मुझे चाहिए होगा. और अगर मेरे पास मल्टीप्लेक्सर है लैब में, can I use that to implement this function? If I have 4 to 16 input multiplexer, 1 multiplexer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 input multiplexer, just one output. I will call this 16 to 1 mux. So basically the job of this is that it will have some select lines. How many select lines? Enable को भूल जाए, enable हम use नहीं करेंगे. 4 select lines. How, अगर n inputs हो तो select lines कैसे निकालते हैं? हाँ भाई. If you have n inputs, how many select lines will be needed? आज जिन्होंने आज मुझसे पूछा था क्लास में, लैब में, वो ना हाथ खड़ा करें. और कोई बताए जो ओरिजिनल सोचे. n inputs हैं, select lines कितनी होंगी to select any one of them? n बल्ब लगे हुए हैं और एक कॉम्बिनेशन से एक बल्ब ऑन हो जाता है, डिकोडर में जैसे होता है. तो कितनी select lines चाहिए होंगी? Formula. We need a formula for that. A mathematical expression. To n inputs हैं तो select lines कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी. हाँ, सारे n inputs में से आप किसी एक को select करनी है तो select line तो कम है. जिस तरह 8 inputs हैं, select line होती हैं 3. 4 inputs हैं तो select line होंगी 2 इनपुट है, सिलेक्ट लाइन होगी 1, या ये सिलेक्ट करो या वो. 0 से 1 सिलेक्ट होगा, 1 से दूसरी सिलेक्ट हो जाएगी, 4 से 2 से 4 सिलेक्ट हो सकती हैं. तो फॉर्मूला क्या हुआ फिर? n इनपुट्स, हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन? फॉर्मूला n inputs, how many select lines to select? Sorry, log of n. ये इन्होंने बताया आपको, देखें ये है. अच्छा, ये कहा है उन्होंने, log to the base 2n, राइट. तो अगर आपके पास कैलकुलेटर में फर्ज करें log base 10 है, 2 नहीं है, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही मैम, तरफ आपकी मैथ स्किल देखना. इतना मैथ पढ़ा ए लेवल में, ओ लेवल पे पढ़ के आप लोग पागल हो गए. डिवाइड कर देंगे लोग. log 10 divided by log 2. So basically number of select lines equal to log of base 2
n, फिर n इज टोटल इनपुट्स, साथ में ये भी डाल दें। ये क्या चीज है? सीलिंग फंक्शन। अगर 15 लाइंस हैं तो सिलेक्ट करने के लिए 15 में से भी 15 to 1 भी हो सकता है, तो 14 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। तो 12 के लिए भी उतनी सिलेक्ट लाइन चाहिए होंगी जितनी 16 के लिए चाहिए होंगी। तो सीलिंग फंक्शन का ये कि अगर आंसर 3.5 आ रहा है तो 4 करेंगे आप, और ऊपर की तरफ आप उसको रैंडमाइज, सॉरी, ऑलराइट। सो 16 इनपुट्स, 0 1 up to 3 up to 15 and 4 inputs। और यहाँ पे जो 0 लिखा होगा सिलेक्ट लाइन पे, वहां पे मुझे यहाँ से वही लिखना पड़ेगा, N M L K, so that when I give 1 0 0 0 which is 8, input number 8 is should be selected and it go there। तो अब यहाँ पे क्या लगाऊं मैं? जब when input is 0 0 0, what should be selected? This table से देखें directly, when all the 0 inputs are 0, what should be selected at the output? 0 0 लगा दूंगा, ग्राउंड कह लें या 0। So I'll just connect a ground here or a 0 here, 0 or ground, as 0 or ground, like that, यही चीज। और यहाँ पे मैं आई कैन कनेक्ट 1, वहां पे आई डोंट केयर। तो ये सारा टेबल यहाँ पे कॉपी कर दें बस, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करने की जरूरत, नथिंग एल्स टू डू, so that when it is 0 0 1, output number 1 is connected and 1 is connected, so you will get 1 at the output। ये जब मैं इनपुट दूंगा 0 0 1 1, this 1 is selected, this is connected to the output, it gets a green light to appear at the output। क्योंकि फंक्शन डोंट केयर है 2 पे, तो ये हमारे पास में नहीं है। ये हमें जिसने डिजाइन करने के लिए दिया है ना फंक्शन, वो उसने ये इस तरह दे दिया। इसी तरह जो है वो हमारे हमने हमने नहीं करना, हमें तो फंक्शन इंप्लीमेंट करना था। ये हमें किसी ने कहा कि ये डोंट केयर का मतलब ये कि ये वाला कॉम्बिनेशन कभी इनपुट पे अपीयर नहीं होगा, तो आउटपुट जो मर्जी आए, क्योंकि अपीयर ही नहीं होना इसमें। लेकिन आपने इसको केटर तो करना ही है किसी तरह से, तो आप इसको 0 लगा दें, 1 लगा दें। अगर आप ओपन छोड़ देंगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। Not connected input sometimes bother your circuits because of noise, some hand touch करें तो थोड़ा सा उसमें वोल्टेज चेंज हो सकती है, तो they can cause unnecessary changes। So सारे 1 हो, वो तो कोई फंक्शन ना ना हुआ, फिर वो बस 1 लगा दें आप। वन ही होगी ना यार, सिर्फ VCC लगा दें आप बस। सारे फंक्शन की इनपुट, कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जो सबके लिए 1 हो। हमने ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ना, उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, जो सारी वैल्यूज के लिए 1 हो। लेकिन वो अगर आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसकी ये इनपुट है, जो सारे इनपुट वैल्यूज के लिए 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको +5 लगा देंगे बस। जो मर्जी यहाँ चेंजेस करते रहो बैठ के, आउटपुट 1 ही रहेगी। आप उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत। All right, so the next question is
अब सारे लोग जा रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं वॉशरूम क्यों जा रहा हूँ। हाँ देखिए कितने हैं। वो मैं हैरान था, 3 लोग इकट्ठे जा रहे हैं वॉशरूम, की चक्कर क्या है। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन? अब ये तो बहुत बड़ा इसके लिए चाहिए हमें मल्टीप्लेक्सर। 16:1 मल्टीप्लेक्सर you will not easily find in one IC. So can I implement this function using only 8:1 multiplexer, which is quite easily available? 8:1 multiplexer. कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी इसकी? 3. Usually what you do is you connect here K, L, M. 0, 1, 2. The question is what to do with N. N का अब क्या करें? Oh my God. So what you have to do is make a pair of these two. Pair of these two. For K, L, M is 0, 0, 0, 0. What should be the output? दो दो का लाइन लगा लें आप. So when the KLM is 0, 0, what should be the output? कोई N में और आउटपुट में रिलेशनशिप नजर आ रही है क्या? हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? हैं? N होगा. So N is same as the function F. So that means when this is 0, 0, 0, if N is 0, output should be 0. If N is 1, output should be 1. That means when it is 0, 0, 0, output should be N. So I connect N here. So when these are 0, 0, 0, this output will be connected. If N is 0, what will be the output? 0. If N is 1, 4 ही है ना इनपुट्स. K, L, M, N. N is ये N अगर 1 है तो आउटपुट पे क्या होगा? 1. यहां पे क्या करूं? यहां पे डोंट केयर का मुझे फायदा हो जाएगा. यहां पे क्या करूं? 1 कर लूं तो 1 के केस में फिर मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? व्हेन इनपुट इज 0, 0, 1, क्या कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे? हम्म एम. एम क्यों? वन. एम नहीं, एम को उधर ही लगाना है, उसके फॉर्म में नहीं लिखना आपने कुछ भी. एम के इससे कोई ताल्लुक नहीं है. आपने सिर्फ एन के फॉर्म में फाइंड करना है. एन अगर ये इसको फॉलो कर रहे हैं तो एन लिख देंगे. अगर ये इसको यहाँ सारे दोनों 1 है तो 1 लगा देंगे. ये भी 1 लगा देंगे, ये भी एन लगा देंगे, ये भी एन लगा देंगे. यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0. ये सारे हो गए पूरे. ये एक्स्ट्रा लाइन लगाई है शायद मैंने. तो वो एक केस आ सकता था जब ये 1 हो, ये 0, फिर क्या लगाएंगे? दैट्स द फोर्थ पॉसिबिलिटी. एन एन कॉम्प्लीमेंट. अगर ये होता ना यहाँ पे तो फिर एन कॉम्प्लीमेंट लगाना था. 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 0. एन कॉम्प्लीमेंट. इस केस में सारे 1 ही लगेंगे तो थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाती है. अदर देन दिस ब्लॉक ज्यादा हर
यू गेन समथिंग, यू लूज समथिंग, इसमें कुछ नहीं चाहिए। इस केस में आपको एक इन्वर्टर चाहिए हो सकता है एन के लिए, but अदरवाइज आइदर यू कनेक्ट एन 1 0 और एन कम्प्लीमेंट। तो इसमें मैं क्या क्या लगाऊंगा, यहाँ भी 1, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फंक्शन इंप्लीमेंट। बहुत बचेगी, इसकी कास्ट बहुत कम है, कि स्पेस भी कम है इसके। एक आईसी की बहुत छोटी अगर आप रियल स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी रियल स्टेट कम है, ये छोटा प्लाट है, वो बड़ा प्लाट है, उसने ज्यादा जगह ले लेनी है आपके पीसीबी पे। इन्वर्टर तो एक आईसी एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना आपको बस, वो बहुत बड़ा है फिर भी, तो फिर भी बड़ा है। तो कोई पूछ सकता है कि कैसे भी ज्यादा रिड्यूस कर सकता हूं मैं, कैन आई कनेक्ट 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर एंड इंप्लीमेंट दिस फंक्शन 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। इसके अंदर मैंने लिखना भूल गया हूं, हर वक्त लिखना जरूर होता है, याद रखें 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर लिखना जरूर होता है, डोंट लीव इट ब्लैक बॉक्स। वी नो व्हाट इज इनसाइड दिस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था। We can study that in the lab again, so don't worry, we are going to study this in the lab. So कितनी select lines होंगी, 2। We give K here, L here। तो अब हम यहाँ पे कितने कितने का बनाएंगे कॉम्बिनेशन, पहले 2 2 का बनाया था, अब कितने का बनाएंगे, एल और अब एम और एन दोनों हमारे कहीं ना कहीं हमने देने हैं, तो 2 2 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। सो लेट्स से मैं ये 4 का बनाता हूं, 4 फॉर दिस। What is the relationship between these 4 and these 2? These 2 and this is the output। और गेट है, इसको अगर मैं 1 अज्यूम कर लूं, 0 1 1 1 क्या हो जाएगा, और गेट। तो आई विल कनेक्ट हेयर, मैं सर्किट नहीं बनाता, आई विल कनेक्ट हेयर एम और एन। और लेके लगाना पड़ेगा मुझे। लॉक कर दीजिए तो कैसे खुलेगा यार। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या कनेक्ट करूं, ओ राइट, वेरी गुड यार, ये बच्चा लाइक है। राइट, यस, मुझे देर में नहीं रहा ये, अगर इसको हम 0 कंसीडर कर लें तो ये तो एन है। वेरी गुड यार, इस बच्चे के लिए ढेर सारी तालियां हैं। बहुत लाइक बच्चे हैं भाई इस क्लास में, वेल डन। और जब ये दोनों 0 1 है, फिर भी एन कर लेते हैं। इसका ये मतलब कि पहली 8 इनपुट्स के लिए एम कुछ भी नहीं कर रहा, पहली 8 इनपुट के लिए जो है ना आउटपुट जो है वो एन को फॉलो कर रही है, 0 1 0 1 0 1 0 1, और पहली 8 इनपुट यहाँ पे कवर हो रही है। अगली 8 में क्या हो रहा है, अगली 4 को देखते हैं।
इसमें क्या होगा, लॉट तो नहीं है, 0 1 0 0 है, 0 1 0 1 0 0, तो ये किस मिनटर्म के लिए 1 है, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये दो ये वेरिएबल है, ये आउटपुट 1 है, किस मिनटर्म के लिए 1 है, ये m नॉट n, ये लगाना पड़ेगा यहां पे। और लास्ट वाले को अगर आप अज्यूम करें कि ये 1 है, तो अगर ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही रहती है। ये दोनों इनपुट्स अगर 1 है, तो जब ये दोनों इनपुट्स 1 है, ये इनपुट जब 1 है दोनों, तो ये आउटपुट कनेक्ट होगी, एंड यहाँ पे मुझे क्या कनेक्ट करना है, 1, तो ये आपका सर्किट बन गया। तो दिस टाइम यू नीड 4 to 1। अब ये ना कहें कि 2 to 1 से अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, दैट विल बी गोइंग थ्रू द टॉप, आई डोंट वांट टू डू दैट, इतना काफी है। अगर आपको कोई आया क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि 8 to 1 से या 4 to 1 से इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डू नाउ। अब सिर्फ के इनपुट देंगे, बाकी फंक्शन आएगा, के एल एम का सारे का देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। फिर ऊपर सिर्फ एक इनपुट आएगी ना, सिलेक्ट लाइन, फिर आपको के एल एम एन का ट्रूथ टेबल से फाइंड करके एक इनपुट पे देना पड़ेगा, और 1 के लिए और ट्रूथ टेबल से फाइंड करके दूसरा देना पड़ेगा। 1 अगर है तो आउटपुट पे ये सारे का ये फंक्शन है, ये बना के लगाना पड़ेगा। All right. So I think and it's time to move on to the next topic. So that is think of a devil. And devil is there. अभी हमजा की बात हो रही थी और हमजा साहब आ गए। Anyway, right. एक चीज और थोड़ा सा हम कर लेते हैं, वो है नंबर सिस्टम, और अगला चैप्टर। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपका start thinking about number systems. The only 3 number system we are going to talk about is binary and decimal and hex. No other. There is no practical use of any other than these. वैसे तो हेक्स का भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि हेक्स अगर क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, वरना हेक्स का कोई यूज नहीं है। सो बाइनरी काउंटिंग में थोड़ी आपको बताता हूं कि एक नंबर दिया हो, बाइनरी नंबर दिया हो, डेसिमल नंबर अगर दिया हो, फर्ज करें ये कोई डेसिमल नंबर, डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, तो इससे नंबर कैसे बनता है, टोटल नंबर वो कैसे बनता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ 7 2 5 3 9, हमें तो फौरन पता लग जाता है ना कि ये आपके पे है, टेक होम पे है। लेकिन वैसे जो है इसको कैसे करते हैं कि दिस इज एक्चुअली 9 into 10 raised power 0 plus 3 into 10 raised power 1 plus 5 into 10 raised power 2, which is 100, plus 2 into 10 raised power 3000, plus 7 into 10 raised power 4, and so on. तो ये जब इसको निकालते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9 plus 30 plus 500 plus 1000
प्लस 70,000। तो टोटल जब आप करते हैं तो यही नंबर आ जाता है 72,539। सेम इज द केस विद बाइनरी नंबर। इसी तरह एग्जैक्टली बाइनरी नंबर B0, B1, B2, B3, B4। So decimal value of this binary number is not needed वैसे। Only it is calculated decimal value जब इंसानों को दिखानी होती। कंप्यूटर में बाइनरी स्टोर्ड रहती, कैलकुलेशन भी सारी बाइनरी पे होती। जब इंसानों को दिखाना होता है फिर जो है ना मसला होता है, फिर आपकी जो है ना वो आउट क्या कहते हैं उसको, आयो स्ट्रीम काम करती है, क्या कहते हैं, कानियो कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, क्या आयो स्ट्रीम यूज होती है जो भी है। अदरवाइज नंबर बाइनरी में रहते हैं। अगर आयो स्ट्रीम ना हो तो आपको खुद भी पता ना लगे क्या वैल्यूज हैं, किधर हैं, कैसे काम कर रही। आयो स्ट्रीम देख के उसको कन्वर्ट करती है। सो दिस इज B0 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 0 प्लस B1 2 रेज पावर 1 प्लस B2 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 2 प्लस B3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3 प्लस B4 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 4। इस तरह से सारा नंबर जितना बड़े आप मसली नंबर हो इसको बाइनरी में ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे आप, और कोई आपके पास तरीका नहीं है इसको कन्वर्ट करने। तो अगर कोई नंबर ऐसे जल्दी से एक देख लेते हैं नंबर, फिर खत्म करते हैं, क्विज स्टार्ट करते हैं। कितना, हाँ 2 मिनट है बस। तो 10111 ये नंबर है। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 इंटू 2 रेस पावर 0 किसका बराबर होगा? 1 प्लस 0 इंटू 2 रेस पावर 1 किसके बराबर होगा? 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 4 प्लस 1 इंटू सॉरी 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 16। तो 2 रेस पावर 0 है, 2 रेस पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 16। तो जिनके लिए 1 है वो वाली बेसिकली वेटेजेस ऐड हो जाती हैं। तो दिस इज 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 1। So this comes out to be equal to 29. So we write this 11101 base 2 is equal to 29 base 10. This is not 11,101. Base 2 is you have to spell all the bits separately. सारी आपको स्प्लिट आउट करनी पड़ती हैं। 11101। So this is conversion from binary to decimal. So let's start the quiz या क्विज डिस्ट्रीब्यूट कर दें सबको, यार ये लें, आप भी लें या करें थोड़ा सा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, चीटिंग नहीं करनी है आपने किसी ने भाई, बहुत नाइस बच्चे हैं माशाल्लाह। अब बातें मान, नो टॉकिंग नाउ। टाइम until the class ends 20 minutes. This is all we can afford for a quiz, 20 minutes. उल्टा रखें, पीछे बड़ा बड़ा अपना रोल नंबर लिख लें। फॉन्ट साइज होना चाहिए 16 एटलीस्ट, और फॉन्ट जो है कैलिबरी फॉन्ट यूज करना है आप लोगों ने। टाइम नहीं हो रहा, मैंने निकल जाए बाहर आप।
आप हमारे मुल्क के सियासतदान नहीं बन सकते। उल्टा के उल्टी साइड पे रोल नंबर लिखना है, सीधा नहीं रखना। अभी उल्टी साइड पे आपने, हाँ यार पर खबर करो अभी मैं हो गया, सबको मिल गया। जल्दी करें भाई, दो दो तीन तीन पकड़ा के आगे चलें, दो दो पकड़ाते जाएं इनको। ताहिर साहब तेज करें जरा। आपको मैंने दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, जल्दी करें जल्दी करें। उल्टा रखें उल्टा रखें। मिल गया सबको। ओके स्टार्ट। हाँ भाई, आप इस क्लास में। हाँ जी, क्या मसला है आपके साथ? आपका क्विज हमने दो ड्रॉप करने हैं आपको, जो हम जो है ना। हाँ तो बस एक रह गया ना, वो हम ड्रॉप कर देंगे। वो हमने दो ड्रॉप इसलिए करने हैं कि हम ट्यूशन नहीं ले रहे बस। हमें इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा क्विज चेक करने का। नहीं, हमने और कोई नहीं ऑनलाइन लेने, बस हो गया जो होना था। ना ना ना, दो मैंने ड्रॉप इसलिए करने हैं कि मैंने अब कोई प्रोडिक्शन नहीं लेनी। ठीक है ना। आप और क्विज ना ना मिस करें, आज के बाद कोई मिस ना करें, जो भी है। ये मैंने दो इसलिए रखे हैं, जान के मैं कोई एजुकेशन है, आपके सेट का एग्जाम हो आप ना जा सके तो आप कहेंगे मैं जान के नहीं आ सका। ये ना मुझे क्या करें, जान के नहीं किए मैंने, जान के कोई नहीं है, मैंने दो एक्स्ट्रा लिए हुए हैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं। आप भी सेंटर में हो जाए भाई। आप भी साइड पे हो जाए, वो भी साइड पे हो जाए। एंड भाई, ये एंड में बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको ये फीड करें इधर हो जाए, ये वाले हाँ। और जिसमें वो रिबन लगाया हुआ है सामने।
बंद कर दें। ये वो एंड में जो मैं कह रहा था वो भी आ गया होना बीच में, चलो कोई नहीं। वो एंड रेड कलर का एंड फॉर ऑल।